یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس نے آٹومنز کو یورپ کے ہارٹ لینڈ تک پہنچا دیا۔ اس جنگ میں ایک طرف سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور ابراہیم پاشا کی فورسز تھی تو دوسری طرف ہنگری کا کنگ لوئی دی سیکنڈ اور ہولی رومن امپائر۔ یہ لڑائی ایسی جنگوں کا آغاز بنی جس کے بعد آٹومن مسلم امپائر اور کرسچن یورپین سٹیٹس آنے والے 150 سال ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہی۔ اس جنگ کے بعد ہنگری کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا جو کئی صدیوں تک واپس نہ آ سکا۔ اس لڑائی میں ایسا کیا ہوا، جانیے اس ویڈیو میں۔ بداپیسٹ کا یہ جو شہر ہے یا یہ علاقے کہہ لیں، یہ شہر تو بعد میں بنا، لیکن یہ جو علاقے تھے یہ کبھی مسلمانوں کے پاس ہوا کرتے تھے اور جو خلافت عثمانیہ ہے یہ اس کا حصہ تھے اور خلافت عثمانیہ کا بارڈر تھا۔ اور یہ علاقے جب ترک مسلمانوں نے یہاں پہ یورپ کی طرف اپنا ایڈوانس شروع کیا تو وہ علاقے فتح کرتے ہوئے اس شہر تک آ گئے تھے اور ایک بڑی مشہور لڑائی ہوئی تھی۔ وہ ہوئی تھی یہاں سے ذرا دور تھی، لیکن اس کے بعد ہنگری کے علاقے، بیشتر علاقے اور یہ شہر جو تھے یہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول قائم ہو گیا تھا، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ شہر اور ہنگری جو ہے وہ اپنی اس مشہور ڈیسائسو بیٹل آف موہاش کی وجہ سے اس کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے 1820 میں تخت سنبھالا تھا اور اس وقت آٹومن امپائر اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی۔ ویسل سٹیٹس اور اس کے زیر اثر علاقوں سے آنے والے ریونیو کی وجہ سے سلطنت امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ایک ملٹری مائٹ بھی بن چکی تھی اور یہ اپنی فوج میں بھرپور انویسٹمنٹ کر رہی تھی۔ ٹرکس اپنی آرٹلری اور اس کی ٹیکنالوجی میں خاصی ایڈوانسمنٹ حاصل کر چکے تھے۔ یہی آرٹلری تھی جس نے انہیں کانسٹینٹینوپل میں فتح دلوائی تھی۔ اس ملٹری قوت اور اس ویل ٹرینڈ فوج نے ٹرکش ایکسپینشن کی سپیڈ بھی تیز کر دی تھی۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے اپنی زندگی میں 13 ملٹری کیمپینز کی اور اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا بارڈر دگنا پھیل گیا تھا۔ وہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھتا تھا اور وہ شاعر بھی تھا، لیکن کار سرکار چلانے میں انتہائی سخت تھا۔ اس نے بغاوت کے جرم میں اپنے ہی بیٹے شہزادے مصطفیٰ کو بھی پھانسی دے دی تھی۔ اس کا مین وزیر ابراہیم پاشا جو کہ ایک مچھیرے کا بیٹا تھا لیکن ترقی کرتا دربار تک اور پھر دربار میں گرینڈ وزیر کے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف 16 سینچری کے آغاز میں یورپ کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ پورا یورپ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ پاور کے بہت سے سینٹرز سے مختلف خاندان تھے جو یورپ کے علاقوں پر رول کر رہے تھے۔ یہ آپس میں شادیاں بھی کرتے تھے، علاقے بھی ایکسچینج کرتے تھے۔ کنگ ولادسلاس II 1490 میں ہنگری کا بادشاہ بنا۔ یہ ایک کمزور حکمران تھا جس نے ہنگری کی مونارکی کو بہت کمزور کر دیا اور وہاں ایرسٹوکریسی یا نوبلز بہت مضبوط ہو گئے۔ یہ بادشاہ اپنے درباریوں کے ہاتھوں اتنا کمزور تھا کہ اسے کنگ دوبرے کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کچھ بھی رکھا جاتا تو یہ فوراً اسے مان لیتا تھا۔ دوبرے کا مطلب تھا آل رائٹ۔ یورپ کی بڑی فالٹ لائن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائی بھی ہنگری تک پہنچ چکی تھی۔ ہنگری کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ 1516 میں ولادسلاس کے بعد کنگ لوئی دی سیکنڈ ہنگری کا بادشاہ بنا۔ کنگ لوئی جب بادشاہ بنا تو اس وقت وہ صرف 10 سال کا تھا۔ اس نے 1522 میں ہاؤس آف ہیبسبرگ کی شہزادی میری آف ہیبسبرگ سے شادی کر لی۔ ہاؤس آف ہیبسبرگ ایک آسٹرین ڈائنیسٹی تھی جس کے بادشاہوں نے جرمنی، آسٹریا، اٹلی، انگلینڈ، اسپین، ہنگری، کروشیا اور پورچگل کے علاقوں پر حکمرانی کی اور اس وقت یہ یورپ کا سب سے طاقتور خاندان تھا۔ اس وقت ہولی رومن امپائر بھی ہاؤس آف ہیبسبرگ کے پاس تھی۔ ہولی رومن امپرر میکسیملین I اور اس کے بعد آنے والے چارلز V کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ ہولی رومن امپائر سینٹرل اور ویسٹ یورپ میں مختلف سٹیٹس کی ایک کنفیڈریسی تھی جسے پوپ کی رہنمائی یا بلیسنگ حاصل ہوتی تھی۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنا تو آٹومن امپائر کے ایمبیشن ترک علاقوں سے باہر تک پھیل رہے تھے۔ آٹومنز اس سے پہلے بھی ہنگیرین علاقوں جو بارڈر پر تھے وہاں حملے کرتے رہتے تھے۔ ہنگری کے کنگ لوئی دی سیکنڈ نے اس وقت ان آٹومن حملوں کے خلاف ہولی رومن ایمپرر میکسیملین سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی خاص امداد نہیں آئی۔ 1521 میں آٹومنز ڈینیوب کے کنارے تک آ گئے اور اپنے بارڈر کے ساتھ یورپ کے مختلف علاقوں میں وہ اب اپنی ایکسپیڈیشنز بھجوانے لگے۔
उन्होंने इसी दौरान बेलग्रेड पर कब्जा कर लिया, जो अब सर्बिया का कैपिटल है। ये उस जमाने में नेंडोर फेरवार कहलाता था और हंगरी के सबसे मजबूत किलों में से समझा जाता था। ये किंग ऑफ हंगरी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ऑटोमन्स ने इसके बाद यूरोप पर हमलों के लिए सर्बिया की इसी टेरिटरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस शिकस्त के बाद अब पूरे हंगरी और यूरोप में एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी। अक्टूबर 1523 में हंगरी की नोबिलिटी ने इकट्ठे होकर बेलग्रेड को दोबारा टेक ओवर करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त ऑटोमन्स के खिलाफ इस लड़ाई के लिए 60,000 की फौज जमा कर ली गई। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी फौज थी और जज्बात में आकर इसको इकट्ठा तो कर लिया गया, लेकिन इसे मैनेज करना बादशाह के लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस जमाने में फौज के साथ इसको पे करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती थी। ये एक बड़ी फौज थी और ऑटोमन्स को लग रहा था कि ये लड़ाई उनके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी अहम डेवलपमेंट हुई जिसने सूरत हाल का रुख ऑटोमन्स की फेवर में मोड़ दिया। ऑटोमन अटैक से पहले भी फ्रांस और हाउस ऑफ हैब्सबर्ग की आपस में लड़ाइयां चल रही थी। दोनों के दरमियान 1525 में एक जंग हो गई, जिसमें फ्रांस का बादशाह फ्रांसिस वन उसे बैटल ऑफ पाविया में हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के चार्ल्स V के हाथों शिकस्त हो गई। इस लड़ाई में वो गिरफ्तार भी हो गया, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ मैड्रिड साइन किया गया और उसे रिहाई मिली। इस लड़ाई ने यूरोपियन पॉलिटिक्स में तो हाउस ऑफ हैब्सबर्ग को बहुत मजबूत कर दिया, लेकिन फ्रांस अब इंतकाम चाहता था। फ्रांसीसियों और ऑटोमन्स ने चार्ल्स V, जो कि उस वक्त होली रोमन एम्परर भी था, उसके खिलाफ एक अलायंस बना लिया। फ्रेंच मोनार्की ने भी ऑटोमन्स का साथ देने का फैसला कर लिया और ऑटोमन्स से दरख्वास्त की कि वो भी होली रोमन एम्पायर पर अटैक करें, जिसका पहला मरहला ये था कि हंगरी को टेक ओवर किया जाए। इस दरख्वास्त के बाद 16 अप्रैल 1526 सुलेमान द मैग्निफिसेंट खुद फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल से रवाना हुआ। उसकी फौज ने डैन्यूब दरिया के साथ साथ सफर किया। डैन्यूब का दरिया यूरोप की मेन गुजरगाह थी और उस वक्त एक अहम ट्रेड रूट भी था। इस दरिया के साथ साथ ही ऑटोमन फोर्सेस अब हंगरी की तरफ बढ़ रही थी। ये फौज बहुत डिसिप्लिन थी। कहते हैं ओसाइजक, जो कि सर्बिया का एक शहर है, उसके पास ड्रावा दरिया पर जब ऑटोमन फौज ने कश्तियों का एक पुल बनाकर उसे क्रॉस किया, तो उसके बाद वजीर इब्राहिम पाशा ने इस पुल को ही तबाह करने का ऑर्डर दे दिया, ताकि फौज में कोई भी रिट्रीट का ना सोचे। इस जंग में दोनों तरफ ही बड़ी मिलिट्री ताकतें थी। हंगरी की फौज यूरोप में बेहतरीन फौजों में से समझी जाती थी। हंगरी की वॉर काउंसिल ने अपनी फौज को 3 मेन यूनिट्स में तकसीम किया। एक ट्रांसल्वेनिया की फौज थी, दूसरी किंग लुई के अंडर कमांड फौज थी और तीसरी एक छोटी फोर्स क्रोएशियन कमांडर्स के अंडर थी। ऑटोमन फोर्सेस भी इस जंग के लिए भरपूर तैयारी करके आई थी। कहते हैं इस जंग में उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी आर्टिलरी फोर्स इस्तेमाल की, जिसमें 300 गन्स शामिल थी। मुकाबले में हंगरी की फौज के पास सिर्फ 85 गन्स थी। इंटरेस्टिंगली, फौज में शामिल ऑटोमन जानिसारीज के पास जो बंदूकें थी, वो उन्होंने हंगरी के ही गन स्मिथ से बनवाई थी। हंगरी की फौज इन्हीं बंदूकों से लेस थी। हंगरी की फौज की एक तो तादाद बहुत ज्यादा थी और ये वेल इक्विप्ड भी थी, लेकिन ये फौज अपने कैपिटल बूदा से बाहर निकलकर इस ऑटोमन फोर्स का मुकाबला करना चाहती थी। बूदा और पेस्ट उस वक्त 2 मुख्तलिफ शहर थे जो डैन्यूब दरिया के किनारे आमने सामने थे। बाद में 19th सेंचुरी में इनको इकट्ठा करके बुदापेस्ट का शहर बना दिया गया, जो अब हंगरी का कैपिटल भी है। उनका ख्याल था कि इस तरह से किसी भी शिकस्त की सूरत में उनके पास एक बैकअप प्लान मौजूद होगा। ऑटोमन फौज और हंगरी की फौज का आमना सामना मोहैच के मुकाम पर हुआ। यह मैदान हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया के बॉर्डर के नजदीक है। उस वक्त यहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मोहैच था, जिसकी वजह से इसे बैटल ऑफ मोहैच कहा जाता है। इस जंग से पहले हंगरी की वॉर काउंसिल ने पॉल तोमोरी, जो कि एक आर्क बिशप था, और काउंट जेपियोला को वॉर कमांडर के तौर पर सिलेक्ट किया। पॉल तोमोरी एक मिस्टीरियस फिगर था जो पहले एक सिपाही था लेकिन फिर एक मॉन्क बन गया। उसने इससे पहले कुछ झड़पों में ऑटोमन फोर्सेस को शिकस्त दी थी। उस जमाने में ऐसी जंगों के लिए फोर्सेस पूरे यूरोप से इकट्ठी होती थी। बहुत से मर्सिनरीज भी यूरोप में घूमते फिरते रहते थे, जो पैसे और टाइटल देता उसके लिए वो लड़ते थे। कहा जाता है कि मोहैच की लड़ाई लड़ने का फैसला भी पॉल तोमोरी का ही था। ऑटोमन फोर्सेस मोहैच तक बगैर किसी मज़ाहमत के पहुंच गए। जब ऑटोमन फोर्सेस वहां पहुंची तो हंगेरियन फौज वहां मौजूद थी, जिसने उनका रास्ता रोक लिया। इस तरह से ये मैदान जंग की चॉइस हंगेरियन फोर्सेस की थी। वो ऑटोमन के साथ अपने कैपिटल से दूर इस ओपन मैदान में जंग लड़ना चाहते थे।
ऑटोमन फौज ये चाहती थी कि इस हमले का आगाज हंगेरियन फौज खुद करे ताकि वो अपनी तोपों से डिफेंड कर सके और उनकी ये गन्स ज्यादा इफेक्टिवली दुश्मन को नुकसान पहुंचा सके। मोहैच की इस जंग को मिलिट्री हिस्ट्री में फायर पावर की लड़ाई भी कहा जाता है। हंगरी उस वक्त बंदूकें बनाने में पूरे यूरोप में आगे था और टर्क्स अपनी हैंडगन्स की वजह से मशहूर थे, जिन्हें साकालोज कहा जाता था। इसके अलावा ऑटोमन फोर्स ने अपनी तूफैंक्स या बंदूकें भी इस्तेमाल की। इनको एक जगह बैठकर या खड़े होकर फायर किया जाता था। ये फायर एक वॉली की सूरत में होता था और इसी तर्ज पर आने वाली कई सदियां इन्फेंट्री जंगें लड़ती रही। उस वक्त ये असलहा नया था और ऑटोमन्स ने इसमें खूब इन्वेस्टमेंट की थी। इन ऑटोमन जानिसारीज के पास यही असलहा था जो जंग में फैसला कुन किरदार अदा करने वाला था। ये जंग 29 अगस्त 1526 को लड़ी गई। कहते हैं ये लड़ाई कई किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई थी। इस जंग का आगाज, जैसा कि टर्क्स चाहते थे, हंगरी की आर्टिलरी के फायर से हुआ। इस जंग में दोनों तरफ की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे हैं, लेकिन समझा यह जाता है कि हंगेरियन फौज की तादाद 40,000 के करीब थी और ऑटोमन फौज की तादाद 45,000 के करीब। लेकिन इस जंग की जो आउटकम थी उसमें दोनों तरफ की लीडरशिप का ज्यादा अहम रोल था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट इस लश्कर के दरमियान में था और इब्राहिम पाशा आगे इस फौज को लीड कर रहा था। कहते हैं ये ऑटोमन फौज एक सिंक्रोनाइज तरीके से लड़ रही थी, जबकि हंगेरियन लीडरशिप इसके मुकाबले में डिवाइडेड नजर आ रही थी, जिसको लुई II और आर्क बिशप पॉल तोमोरी लीड कर रहे थे। इस जंग में ऑटोमन मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी तारीख का हिस्सा है। जब हंगेरियन फोर्सेस ने इस जंग में चार्ज किया तो उस वक्त इब्राहिम पाशा की फोर्सेस जो आगे थी वो कुछ पीछे हट गई ताकि हंगेरियन फौज को अंदर आने दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर आती गई, उनकी साइड्स पर ऑटोमन फोर्सेस, खासकर उनकी लाइट कैवलरी ने घेरा डालना शुरू कर दिया। ये क्रेसेंट की तरह की फॉर्मेशन थी जिसने अब हंगेरियन फौज को घेरे में ले लिया। ऑटोमन्स की इस लाइट कैवलरी ने हंगेरियन फौज को आउटफ्लैंक कर दिया था। इसके बाद टर्क्स ने इस घेरे में आई फौज पर चारों तरफ से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इस हमले ने हंगरी की फौज को तबाह करके रख दिया। ये फौज एनसर्कल हो चुकी थी, जिसके हर तरफ टर्क्स मौजूद थे। किंग लुई ने अपनी फौज के साथ इसकी मदद करना चाही, लेकिन टर्क्स ने उस पर भी एक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। इस जंग में जहां ऑटोमन हिकमत अमली की बात होती है, वहीं इस लड़ाई में तुर्कों की बहादुरी की भी कई दास्तानें हैं। कहते हैं इस लड़ाई में सुलेमान द मैग्निफिसेंट खुद भी जख्मी हुआ और उसे भी गोली लगी। लेकिन इस मैदान का नक्शा कुछ ये था कि ऑटोमन सिपाही अब मैदान की साइड्स पर थे और हंगेरियन फौज उनके बिल्कुल दरमियान में आ चुकी थी। एक तरह से वो मुकम्मल हिसार में थे और ऑटोमन जानिसारीज अब इस फौज पर गोलियां और तोपों के गोले फायर कर रहे थे। किंग लुई II ने इस हिसार से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और मैदान से निकलने की कोशिश में पास की एक नदी या मार्शलैंड में गिरकर डूब गया। उसकी लाश कई हफ्ते बाद मिली। यूं ये जंग एक ऐसी ऑटोमन विक्ट्री पर खत्म हुई जिसमें हंगरी का बादशाह खुद भी मारा गया, उसके कमांडर मारे गए, उसकी फोर्सेस तबाह हो गई। ये हंगेरियन फौज की एक कंप्लीट एनाइलेशन थी। इस जंग में 14,000 के करीब हंगेरियन कैजुअलिटीज थी। इस लड़ाई में हंगेरियन फौज का कमांडर पॉल तोमोरी भी मारा गया। इस जंग के बाद और बादशाह के मारे जाने के बाद अब ऑटोमन्स के लिए हंगरी में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं थी। सुलेमान द मैग्निफिसेंट मैदान जंग से सीधा अब बूदा शहर पहुंचा और उसने शहर को बगैर किसी लड़ाई के टेक ओवर कर लिया। जहां मौजूद फ्रेंच और वेनेशियन एम्बेसडर्स ने उसका इस्तकबाल किया और उसे मुबारकबाद दी। इस टेक ओवर के बाद ऑटोमन फोर्सेस उस वक्त तो यहाँ से चली गई, लेकिन फिर इन फोर्सेस ने 1541 में इस शहर पर अपना मुकम्मल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। मोहैच की इस लड़ाई ने जहां ऑटोमन मुसलमानों को यूरोप के हार्ट में पहुंचा दिया, वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई ने यूरोप से किंगडम ऑफ हंगरी का वजूद भी खत्म कर दिया। ये एक कंप्लीट विक्ट्री थी, जिसके बाद 2/3 हंगरी अब ऑटोमन रूल के अंडर था। हंगरी के बच जाने वाले इलाकों और उनके नोबल्स ने फर्डिनेंड I ऑफ ऑस्ट्रिया को अपना किंग नॉमिनेट कर दिया, जो मारे जाने वाले किंग लुई II का ब्रदर इन लॉ भी था और हैब्सबर्ग किंग था। इसके अलावा हंगरी के कुछ इलाकों में एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट ट्रांसल्वेनिया कायम कर दी गई। मोहैच हंगेरियंस के लिए एक डिसाइसिव लॉस था। इसकी बाज़गश्त यूरोप में अरसे तक सुनी जाती रही और शायद आज भी मोहैच को एक ट्रेजेडी के तौर पर ही देखा जाता है। आज भी हंगेरियंस को कोई बुरा शगुन नजर आए तो वो कहते हैं कि मोर वाज लॉस्ट एट मोहैच। इस जंग ने यूरोप में हंगरी की एक अलग शनाख्त को ही खत्म कर दिया था, जो कई सदियों तक वापस ना आ सकी।
ऑटोमन्स अब सेंट्रल यूरोप में थे और एशिया से यूरोप जाने वाले रूट को भी कंट्रोल करने लगे। इस जंग ने अब ऑटोमन्स और यूरोप को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया था और ये मुखालिफत पहली जंग अजीम और फिर शायद आज तक कहीं ना कहीं जारी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नजर भी आती है। ऐसा लगता है कि यूरोप इस लड़ाई और शिकस्त को नहीं भूला। जहां तक इन ऑटोमन फोर्सेस के यूरोप में रहने की बात है तो उनका ये सफर यूरोप में जहां से शुरू हुआ उसी मैदान में खत्म हुआ। मोहैच के मकाम पर एक और लड़ाई जो तकरीबन 150 साल के बाद हुई 1687 में ऑटोमन फोर्सेस को कंबाइंड क्रिश्चियन फोर्सेस या होली लीग ने शिकस्त दी और इनका यूरोप और हंगरी से पैकअप हो गया। इसकी तफसील किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।